ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دفتر کا ماحول حسب معمول رواں تھا۔ ارد گرد کیبنز میں بیٹھے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کمپیوٹر کی ٹک ٹک، فون کی گھنٹیاں اور ایئر کنڈیشن کی ہلکی سی گونج فضا میں گھولی ہوئی تھی، مگر سب کے درمیان انوشا اپنے کیبن کے کونے میں گم سم بیٹھی تھی۔ چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، انگلیاں بار بار ٹیبل پر رکھے پین کو بے مقصد گھما رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ چند لمحے گزرے تھے اور عائزہ، اس کی قریبی دوست اور کولیگ، ہاتھ میں فائل پکڑے اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ دیر اسے بغور دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انوشا، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ تمہارے چہرے کی رنگت اتنی زرد کیوں ہو رہی ہے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے؟ تم نے آ کر مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی، بلکہ تم سیدھا یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آفس میں کئی لوگ تمہیں نوٹ کر رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ سب نے یہی شکوہ کیا ہے آج انوشے آئی لیکن پتہ نہیں چلا، سلام تک نہیں کیا۔ تم نے کسی سے بھی؟ سلیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے سلام بھی کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، بس اپنا بیگ لیے سیدھا کیبن میں چلی گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میری ذات سے جو ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گی۔ آفس کی کوئی ٹینشن ہے یا پروجیکٹ کی؟ اور گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ انوشا نے ایک نظر اس پر ڈالی، آنکھوں میں نمی سی تھی جسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ سر کے ہلکے سے نفی میں ہلاتے بولی، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں عائزہ، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے، کسی کی نظریں ہر وقت مجھ پر ہیں، مجھے اب اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ عائزہ کا ماتھا سکڑ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کس کی نظر محسوس ہو رہی ہے؟ تم پلیز قسطوں میں بات مت کرو، کمپلیٹ بات بتاؤ، ٹینشن ہو رہی ہے مجھے بھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، جیسے خود کو ہمت دے رہی ہو کہ جو کہنا چاہتی ہے وہ زبان پر لا سکے۔ پھر اس نے عائزہ کی طرف دیکھا، نظریں ایک لمحے کو جمی رہیں جیسے یقین کر رہی ہو کہ سامنے والی سنجیدگی سے سنے گی یا پھر اس کی بات کا مذاق اڑا کر چلی جائے گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ بات تم کسی سے بولنا مت، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی جب وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، 2-4 مہینے سے رات کے وقت مجھے ایک فون کال آتی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لرز رہی تھی، ایک مرد کی جو صرف اتنا کہتا ہے تم میری ہو، کسی اور کی ہونے کا تصور بھی مت کرنا، اور اگر تم نے سوچا بھی تو تمہاری سانس چھین لوں گا۔ میری نظریں ہر وقت تم پر رہتی ہیں، تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے ملتی ہو، کون تمہارے پاس ہوتا ہے، تم کیا دن بھر باتیں کرتی ہو، مجھے سب پتا ہے۔ اور اس نے کئی بار ایسی باتیں بھی کی ہیں جو میں صرف تم سے یا پھر اور کولیگ سے ہی کرتی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس تک میری باتیں کیسے پہنچ رہی ہیں، اور وہ ہے کون؟ عائزہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جیسے دم بخود ہو گئی ہو۔ کیا؟ انوشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہر روز نیا نمبر ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار پوچھا کون ہو، کیوں کر رہے ہو یہ سب، مگر کوئی جواب نہیں آتا، صرف وہی ایک جملہ جسے کسی نے ریکارڈنگ کر رکھا ہو۔ عائزہ نے فوراً بات سنبھالی، ہو سکتا ہے کوئی پرینک کال کر رہا ہو، آج کل ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں، تمہارا ایک نمبر مل گیا ہے، بس تمہیں پریشان کرنے میں لگ گئے۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں یہ پرینک کال ہوگی۔ انوشا کے چہرے پر مایوسی کی پرچھائی گہری ہو گئی۔ ہر روز نئے نمبر سے؟ کون اتنی محنت کرتا ہے پرینک کال کے لیے؟ اور پرینک کال صرف ایک دن کی ہوتی ہے، مجھے اس معاملے کو جھیلتے ہوئے پورے 4 سے 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ کوئی مسلسل بھلا کیوں پرینک کال کرے گا؟ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو تم زیادہ سوچ رہی ہو، دفع کرو، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی پر برباد کرے۔ تم جتنا اس پر ذہن لگاؤ گی اتنا الجھتی چلی جاؤ گی۔ کام پر فوکس کرو، گھر پر فوکس کرو، تمہارا دھیان خود بھٹک جائے گا۔ مگر انوشا کی خاموشی جیسے سب کچھ کہہ گئی تھی، چہرے پر ایک گہری الجھن تھی جسے وہ کسی اندیکھے سائے کے پیچھے چھپے خوف کو بیان نہیں کر پا رہی۔
उसे ये महज एक कॉल नहीं लग रही थी, बल्कि आने वाले वक्त का एक ऐसा भंवर लग रही थी जिसमें वो बहुत जल्द फंसने वाली थी। आयजा ने नरमी से पूछा, अगर तुम्हें 4-5 महीने से ये कॉल्स आ रही हैं तो अब अचानक इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई खास वजह? वो आंखें उस पर टिकाए गहराई से बोली। अनुषा ने बस उसकी तरफ देखा, आंखें किसी गहरे राज में डूबी हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में एक बोझ सा था जिसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। आयजा वहीं बैठी बैठी रह गई, जहन में सवालों का तूफान लिए। शाम के साए धीरे धीरे मकान की दीवारों पर उतर रहे थे। मोहल्ले की गलियों में बच्चों की आवाज गूंज रही थी, कहीं दूर से अजान की आवाज उभरी थी। मुतवस्सित तबके का ये छोटा सा घर एक तवील दिन के बाद जैसे थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा था। किचन के साथ जुड़ी छोटी सी बैठक में सब घर वाले फर्श पर दरी बिछाए बैठे थे। दरमियान में एक सादा सा दस्तरख्वान फैला हुआ था जिस पर दाल चावल, आलू की तरकारी और चंद ताज़ा चपातियां रखी थीं। रहमान साहब ने नवाला हाथ में लेते अपनी बड़ी बेटी अनुषा की तरफ देखा, जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रही थी। वो कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर नरमी से बोले, बेटा मैं आप पर सख्ती नहीं करना चाहता और ना ही किसी किस्म का दबाव डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि आप अब अपने घर की हो जाएं, ताकि मैं दूसरी बेटी के बारे में भी सोच सकूं। उसने बेसाख्ता सर उठाकर अपने बाप की तरफ देखा। वो मजीद बोले, अनुषा आपने क्या सोचा? फारूक के रिश्ते के बारे में? घर का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, कोई भी कमी नहीं है, और तुम्हारी पुप्पो का बहुत दिल है कि तुम्हें फारूक की दुल्हन बनाए, और तुम्हारी और फारूक की तो दोस्ती भी इतनी अच्छी है, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। मैं बराह रास्त तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पुप्पो का जोर बढ़ रहा है, मुझे बता दो ताकि मैं आगे जवाब दे सकूं। अनुषा ने चम्मच रोक लिया, नजरें उठाकर बाबा को देखा और फिर मां की तरफ नजर डाली। लम्हे भर के लिए उसका दिल खौफ से धड़क उठा था। उस अजनबी की आवाज जैसे कानों में गूंजने लगी थी, अगर तुमने किसी और के बारे में तसव्वुर भी किया या फिर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया से चुरा लूंगा। हर रोज नए अल्फाज होते थे, कल के अल्फाज भी उसे अच्छी तरह याद थे। उसने सर झटक दिया। रहमान साहब मजीद बोले, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसे मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा, मगर मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो इनकार कर दो, मैं अपनी बहन को समझा लूंगा। चंद लम्हे वो खामोश रही और फिर उनको देखा। आंखों में खालिस बाप की फिक्र थी। वो हौले से बोली, बाबा मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे शादी करनी चाहिए। आप लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और मैं अगर चली गई तो आप लोग मजीद बोझ पड़ेगा। उसने बात को अपने तरीके से ढालने की कोशिश की थी, क्योंकि उस आदमी का खौफ न जाने क्यों इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। रुखसाना बेगम जो साथ ही बैठी थी, एक गहरा सांस लेकर बोली, बेटा अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस थोड़ा है लेकिन बरकत है। हर वक्त बोझ मत समझा करो खुद को, और ना ही इतनी टेंशन लिया करो कि आने वाले वक्त में क्या होगा। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तुम क्यों इतना सोचती हो? पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे कंधों पर थोड़ा ही है। रहमान साहब ने अनुषा की बात सुनी और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, ये तो सारी जिंदगी का मामला है, एक ना एक दिन तुम्हारी शादी तो करनी ही है। अगर हम इसी आसरे में बैठे रहे कि तुम कमा रही हो और हम खाएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। बेटियों की शादी एक ना एक दिन करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तुम्हारी छोटी बहन आयशा भी है, हम कब तक तुम दोनों पर बोझ बने रहेंगे? मेरी प्रमोशन भी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम सिर्फ फारूक के प्रपोजल के बारे में सोचो, उल्टी सीधी सोचे पालने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। और मैं बहुत मुतमईन हूँ, फारूक एक अच्छा लड़का है और अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर हम यही सोचकर रिश्ते ठुकराते रहेंगे तो सिवाय आखिर में जिल्लत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। आयशा भी बेख्तियार बोली, आपी फारूक भाई तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, वो हर बार बड़े अदब से बात करते हैं, मामा को भी पसंद है और बाबा को भी। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? और जो शख्स आपके घर वालों की इज्जत करता है, आप खुद सोचें वो आपकी कितनी इज्जत करेगा। अनुषा ने एक नज़र सब पर डाली,
एक पल को कमरे में खामोशी छा गई, फिर आहिस्ता से बोली, बाबा, फारूक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो वाकई एक अच्छे इंसान लगते हैं, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा है। मैं सिर्फ आपकी वजह से परेशान हो रही हूँ। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या बहाना करे। घर वाले कितनी मोहब्बत से रिश्ते का पूछ रहे थे, अगर वो मना करती तो कितना नामुनासिब लगता। रहमान साहब ने नरमी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके सर पर रखा। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र मत करो, रोटी देने वाला रब है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन ने भी जॉब शुरू कर दी है। सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अब घर में खाने वाले हम 4 ही तो हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो 3 हो जाएंगे। ज्यादा मत सोचो, जवाब दो। रुखसाना बेगम भी मोहब्बत से बोली, बहुत टेंशन देख ली तुमने। जितनी अजियत तुमने बर्दाश्त करनी थी तुम कर चुकी हो। अब हम चाहते हैं बस तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अनुषा ने हल्के से सर हिलाया। तो फिर आपको जैसा मुनासिब लगे। फारूक के लिए कर लें, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं। उसने फैसला ले लिया था। वो अपने घर वालों को किसी अजनबी के लिए मायूस नहीं करना चाहती थी। कमरे की फिजा में जैसे एक नरमी सी घुल गई। रहमान साहब ने फिर एक बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। आंखों में एक अजीब सी नमी छलक रही थी। अनुषा ने फिर नजरें झुका ली। दिल में किसी अनजान सफर का बोझ सा महसूस होने लगा। रात का सन्नाटा हर शय को अपने अंदर समेटे हुए था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और गली के बाहर के कुत्ते वक्फे वक्फे से भौंक रहे थे। अनुषा अपने छोटे से कमरे में बैठी लैपटॉप पर झुकी हुई थी। हल्की हल्की रोशनी कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही थी, जबकि मेज के कोने पर रखा मोबाइल फोन खामोशी से पड़ा था। दफ्तर की प्रेजेंटेशन मुकम्मल करने में वो पूरी तवज्जो से जुटी हुई थी, मगर चेहरे पर थकन और बेचैनी साफ झलक रही थी। चंद लम्हे बाद अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। कमरे की खामोशी में ये आवाज जैसे गूंज सी गई हो। उसका दिल एकदम से जोर से धड़क उठा। उसने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक नया और अनजान नंबर जगमगा रहा था। खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। जिस बात का डर था वही हुआ था। वो लम्हा भर को साकित हो गई, फिर जल्दी से फोन काट दिया और गहरा सांस लेकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसने सोच लिया था फोन रिसीव ही नहीं करेगी, ना फोन उठाएगी, ना किसी किस्म का तमाशा होगा। अभी वो दोबारा काम पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रही थी कि फोन एक बार फिर बज उठा। दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। इस बार उसने बस एक नज़र फोन पर डाली और दोबारा कॉल मुस्तरद कर दी। न जाने क्यों उसे अपनी उंगलियां कपकपाती हुई महसूस हो रही थी। एक अनजाना खौफ उसे अपनी लपेट में ले रहा था। उस फोन में न जाने कुदरती इतनी ताकत थी कि वो आगे काम ही नहीं कर पाती थी। बेचैनी ही बेचैनी उसके पूरे वजूद में सरायत कर रही थी। लैपटॉप बंद करके जैसे ही वो बेड पर लेटने के लिए पलटी, अचानक बाहर 2 तेज फायर की आवाजें सुनाई दी। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल जैसे हलक में आ गया हो। घबराहट में कंबल पर हाथ मारा। कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा बेड के कोने पर बैठ गई। खौफ के मारे जान निकल गई थी। उनका मोहल्ला इतना बड़ा नहीं था कि अगर फायर हो जाए तो इल्म ना हो सके। छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी गलियां और उसमें फायर होना एक बहुत बड़ा मसला था। अभी उठकर वो कमरे से बाहर जाती, उसी लम्हे फोन एक बार फिर बज उठा। उसकी जान हवा हो रही थी। बाहर की टेंशन अलग और अंदर बढ़ता हुआ तनाव उसे मजबूर कर चुका था कि वो कॉल रिसीव कर ले। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल उठाया। उंगली कांप रही थी, मगर इस बार कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उसकी आवाज की जगह सांस रुक चुकी थी। दूसरी तरफ से एक भारी सर्द लहजा उभरा। मैंने कहा था ना, तुम किसी की नहीं हो सकती। फिर तुमने फारूक के बारे में तसव्वुर भी कैसे किया? ये जो फायर अभी हुए हैं ये तुम्हारे घर के अंदर भी हो सकते हैं। मैंने कहा था ना तुम सिर्फ मेरी रहोगी। तुमने हाँ कैसे कही? तुमने क्यों नहीं बताया अपने बाप को कि तुम मेरी हो? तुम किसी और की होने का सोच भी नहीं सकती। अनुषा जैसे पत्थर की हो गई। उसकी सांस रुकने लगी। ये सब कैसे जानता था? अभी तो कुछ ही घंटे पहले घर में बात हुई थी। वो तो कहीं बाहर भी नहीं गई थी। और ये फायर? तमाम बातें सोचकर उसे अपना पूरा वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। यानी उसका शक गलत नहीं था। ये आदमी बहुत ताकतवर था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
उसने घबराहट में बमुश्किल अल्फाज निकाले, लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स मजीद खतरनाक लहजे में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरी जान, और इसकी सज़ा तुम्हें अब मिलेगी और जल्द मिलेगी, और इतनी खतरनाक मिलेगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। फोन कट चुका था। हेलो हेलो, वो पुकारती रह गई, मगर अब खामोशी ही उसका जवाब थी। बाहर मोहल्ले में हंगामा शुरू हो चुका था। पड़ोसियों की आवाज़ें आ रही थीं, किसने गोलियां चलाई, बाहर निकलो, पुलिस को फ़ोन करो, बच्चों को अंदर ले आओ। अनुषा एक नज़र दरवाजे की तरफ देखी, फिर खुद को समेटते हुए अपने घुटनों में सर दे दिया। कमरे की खामोशी में अब सिर्फ उसके तेज सांसों की आवाज़ थी। कमरे की रोशनी मध्यम हो रही थी और एक अनदेखा खौफ उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। लेकिन अभी भी उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि घर की बातें बाहर कैसे गईं। बेख्तियार उसका दिमाग में एक ख्याल आया, क्या कोई घर का फर्द उस आदमी से मिला हुआ है? लेकिन कौन? अम्मी, बाबा, आयशा, तीनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। फारूक के रिश्ते में तीनों ने ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। अगर कोई एक भी उस आदमी के साथ मिला हुआ होता तो वो शख्स लाजमी उस रिश्ते से इनकार करता या फिर कोई ना कोई बात ज़रूर कहता। उसने अपना सर झटक दिया, लेकिन चैन एक लम्हा भी नहीं आ रहा था। दिन का वक्त था। सूरज की रोशनी दफ्तर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और फिजा में मसरूफियत का हल्का सा शोर गूंज रहा था। हर मेज़ पर मुलाजमीन अपने अपने काम में मसरूफ थे। अनुषा भी हस्बे मामूल अपने केबिन में बैठी लैपटॉप की स्क्रीन पर झुकी हुई थी। आंखों पर हल्की सी थकन छाई हुई थी, लेकिन चेहरे पर धीमा इत्मीनान था। इसी दौरान एक क्लर्क उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासुर था। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, मिस अनुषा रहमान, आपको सर बुला रहे हैं, फौरन ऑफिस में आए। जो भी काम कर रही हैं यहीं बंद कर दें, उनके ऑर्डर हैं। अनुषा ने चौंक कर क्लर्क को देखा, हल्के से सर हिलाया और लैपटॉप बंद करके गहरा सांस लिया। कदमों में हल्की सी बेचैनी थी। लम्हा भर के लिए हैरान भी हुई थी, क्योंकि कभी भी उसे इस तरह नहीं बुलाया गया था कि जो भी काम कर रही हैं बंद कर दें। फिलहाल उसने सर झटक दिया। वो ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिली तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने एक अधीर उम्र शख्स बैठा था, मिस्टर अल्ताफ बेग, कंपनी के सीनियर डायरेक्टर। वो सीधी जाकर उनके डेस्क के सामने खड़ी हुई और मुअद्दब लहजे में बोली, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया? सब खैरियत है? मैं काम कर रही थी। अभी कुछ देर में आपके पास प्रेजेंटेशन जमा करा दूंगी। तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। रात में थोड़ा थक गई थी, इसीलिए रह गई, वरना सुबह होते ही मैं आपको दे देती। अल्ताफ बेग ने एक निगाह उस पर डाली। चेहरे पर संजीदगी वाज़ेह थी। उन्होंने मेज़ पर रखा एक लिफाफा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मिस अनुषा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको इस कंपनी से फारिग किया जा रहा है। आपको अब किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार करने की ज़रूरत नहीं। आपने जितना भी उस प्रेजेंटेशन पर काम किया है, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन अब आपके लिए यही बेहतर है कि आप कहीं और नौकरी तलाश कर लें। अनुषा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, कपकपाते हाथों से लिफाफा लिया और नजरें उसकी तहरीर पर गईं। सर, ये क्या है? उसकी आवाज़ में हैरत के साथ घबराहट शामिल हो चुकी थी। बेशक वो फारूक से शादी करने वाली थी, उसे नौकरी छोड़नी ही थी, लेकिन अचानक से उसको निकाल देना इसकी समझ से बाहर था। अभी वो नौकरी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसकी शादी थी, उसे बहुत सारी मदद इन्हीं लोगों से लेनी थी। अल्ताफ बेग धीरे से बोले, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं। आपने कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स कामयाबी से मुकम्मल किए हैं, मगर कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको मज़ीद यहाँ रखना मुमकिन नहीं। अगर आपको हमने अपनी कंपनी में जगह दी तो वो दिन दूर नहीं कि हमें ही हमारी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। माजरत के साथ, लेकिन मिस अनुषा, आपका और हमारा सफ़र यहीं तक था। मगर सर, मैंने ऐसा क्या किया है? अनुषा की आंखों में नमी उभरने लगी। पिछला प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल हुआ, आप खुद खुश थे, फिर ये फैसला क्यों? सर, ये नाइंसाफ़ी है। अल्ताफ बेग ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद की, फिर बोले, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, मैं मजबूर हूँ। यकीन करें, मैं नहीं चाहता कि आपको निकाला जाए, लेकिन मेरी कंपनी मेरे लिए बहुत अहम है।
میں کسی ایک فرد کی وجہ سے اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر آپ نہیں گئی یا پھر آپ نے کسی بھی قسم کا احتجاج کیا، آپ کی وجہ سے کئی ملازم فارغ کیے جائیں گے۔ صرف ایک آپ کی خاطر کئی لوگوں کا رزق بند ہو جائے گا۔ آپ ایک قابل شخصیت ہیں، آپ کو کہیں بھی نوکری مل جائے گی۔ آپ کے گریڈز، آپ کی پرفارمنس، آپ کی ایکسپیرینس، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی انکار کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی سیلری دینے والا باس مل جائے۔ انوشے کا ماتھا سکڑ گیا۔ اوپر سے سر کمپنی کے مالک تو آپ ہیں، پھر کس کے آرڈر؟ اور سر پلیز اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں یہاں خوش ہوں، سب سے میرا دل لگایا ہے، اور مجھے تنخواہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے جو مجھے ملا ہوا ہے۔ سر پلیز ایسا ظلم مت کریں۔ الطاف بیگ نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدگی سے بولے، انوشا پلیز ہمیں شرمندہ نہ کریں، میں بے حد مجبور ہوں۔ بے شک ہاں میں مالک ہوں، لیکن میری کچھ شراکت دار بھی ہیں، اور اس معاملے میں ان کا فیصلہ حتمی ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے آپ یہاں کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا گیا تو بہت بڑا وبال کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن سر آپ تو جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی بدتمیزی، کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ انوشا بحث مت کرو، یہ فائنل ہے، پلیز آپ جا سکتی ہیں۔ انوشا نے کچھ اور کہنا چاہا مگر الطاف بیگ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس میرے پاس اور وقت نہیں ہے۔ دل گرفتہ بے یقین قدموں سے وہ آفس سے باہر نکل گئی، جیسے کوئی اس کی زمین کھینچ کر لے گیا ہو۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک پر روشنیاں تو تھیں مگر اس وقت وہ سنسان اور خاموش لگ رہی تھیں۔ معمول کے برعکس لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، اور ہر چیز جیسے کسی انجان خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انوشا دھیمے تھکے ہوئے قدموں سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ تمام کام نپٹاتے اور اپنا کام کسی اور کو سونپتے اسے رات ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور بے حد تھکن چھائی ہوئی تھی۔ ذہن میں الجھی ہوئی سوچوں کا ہجوم تھا۔ اس شخص کی آواز، اس کی دھمکی اور اچانک نوکری سے نکالے جانے کا صدمہ، یہ سب کچھ اس کے دماغ کو مفلوج کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گئی، سامنے فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سرد رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو وہ ہلکا سا کانپی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی گھر لوٹنے کی۔ ایک بے چینی تھی جو اسے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے وہ بڑبڑائی، کون ہے وہ؟ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ فاروق کی بات میں نے صرف بابا سے کی تھی، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز میں بے بسی اور خوف شامل تھا۔ یہ جو بھی ہے بہت طاقتور ہے، بہت قریب ہے، میری ہر بات ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے بریک چرچرایا کر بجے تو وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے آواز دے کر پوچھا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی وہ اٹھ کر وہاں سے جاتی، اس سے پہلے ہی اگلے لمحے گاڑی کے دروازے دھڑاک سے کھلے اور 4 آدمی برق رفتاری سے نکلے۔ وہ سب سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے، چہروں پر نقاب تھے اور ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ انوشا نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زبردستی کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ جھٹپٹائی، ہاتھ مارنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ مضبوط اور تربیت یافتہ تھے۔ اس کا جسم تیزی سے کمزور ہوتا گیا، سانس بند ہونے لگا، ہاتھوں کی طاقت جاتی رہی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی کرو، ایک نے دوسرے کو حکم دیا۔ دونوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، دروازہ بند کیا اور گاڑی پوری رفتار سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ سڑک پھر سے خاموش ہو چکی تھی۔ قریب سے گزرنے والی 2 موٹر سائیکلیں دور سے گزر گئی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابھی ابھی سنسان سڑک پر ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اندھیرے نے سب کچھ نگل لیا تھا اور انوشا کسی انجان انجام کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ 2 گھنٹے بعد کھلی تو ارد گرد کی شاندار تزئین دیکھ کر اس کے ہوش گم ہو گئے۔ گہرے نیلے رنگ کے دبیز پردے، سفید دیواروں پر سلیقے سے لٹکے خوبصورت پینٹنگز، نرم بستر پر خوشبودار چادریں اور بائیں جانب میز پر رکھے تازہ پھول۔ لمحہ بھر کے لیے وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی
कि वो कहाँ है। अगले ही पल जैसे होश आया वो झटके से उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। खौफ की एक लहर ने उसे अंदर तक जकड़ लिया था। हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ये एहसास ही उसकी जान ले चुका था कि वो अगवा हो गई है। जैसे जैसे उसे सब याद आ रहा था उसके हाथ पांव ढीले पड़ते जा रहे थे। ये कहाँ आ गई हूं मैं? वो घबराकर बड़बड़ाई और तेजी से बिस्तर से नीचे उतरी। पांव जमीन पर रखते ही उसने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। वो एकदम हड़बड़ा गई थी। माँ बाप बहन, एक एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। न जाने क्यों उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। बिखरे हुए बाल, दुपट्टे का उसे कोई होश नहीं था। दोनों हाथों से दरवाजा पीटते हुए वो चीखने लगी, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे यहां से निकालो, मैं कहां फंस गई हूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। अम्मी, बाबा, आयशा कहाँ हो? मुझे यहां से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कोई है? प्लीज मदद करो। कौन ले आया मुझे यहां? मेरी अम्मी, बाबा, आयशा इंतजार कर रहे होंगे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देने के बावजूद जब कोई जवाब न आया तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। खौफ के मारे वो जमीन पर बैठती चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कदमों से जान निकल गई हो। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सुन सी हालत में जमीन पर बैठी रही। मोबाइल फोन पर की हुई बातें उसका दम निकाल रही थी। यानी वो शख्स आ गया था जो मुसलसल 4 महीने से उसे एक फोन कॉल से टॉर्चर कर रहा था। यानी उसी ने इसे अगवा किया था। ये बात इसका दिल रोक चुकी थी। चंद लम्हे वो बैठी रही और फिर जिससे एक बार दोबारा उसे होश आया वो पीछे हटी। कमरे में नजरें दौड़ाईं। दाईं तरफ एक बड़ी सी खिड़की नजर आई। वो लपक कर वहां पहुंची, पर्दा हटाया और खिड़की खोल दी। बाहर का मंजर बेहद दिलकश था। एक वसीओ अरीज बाग, सरसब्ज लॉन, कौसो कज़ा रंगों के फूल, दरमियान में फवारा और दूर छोटे छोटे पिंजरे जिनमें खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे थे। मंजर खूबसूरत था लेकिन उस वक्त उसे एक कैद की मानंद लग रहा था। सोने का पिंजरा जिसमें उसे कैद कर दिया गया था। किसने किया था वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी। चंद लम्हे वो ये मंजर हैरत से देखती रही, मगर अगले ही लम्हे जहन में एक ही सोच आई, भागना है। सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कदम उठाने जा रही है। उसने एक नज़र नीचे झांका। बुलंदी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने खिड़की की चौखट थामी और एक पांव बाहर निकाला ही था कि किसी ने उसका हाथ इंतहाई सख्ती से थाम लिया और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वरना एक लम्हे की देरी और वो खुद को मार सकती थी। वो चौंकी। खींचने के बायस वो उसके मजबूत सीने से टकराई थी। नजरें उठाकर देखा तो लम्हे भर के लिए अपनी जगह पर दम बखुद रह गई। एक बुलंद कामत, चौड़े शाने वाला वजीह मर्द सामने खड़ा था। काला कुर्ता, सुर्ख आंखों में चमकती वार्निंग और चेहरे पर ऐसी गिरफ्त जिसे सर्दियों का इक़्तिदार उसी के चेहरे पर ठहरा हो। वो खौफजदा होकर उसके सीने से लगी हुई थी। सांस उखड़ गई थी। दिल जैसे सीने से निकलकर बाहर आ गया हो। वो मर्द सर्द लहजे में बोला, मरने का बहुत शौक है तुम्हें? अभी खत्म कर देता हूं। कूद कर जान क्यों ले रही हो अपनी? उसके लब कपकपा उठे। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर गुस्से से बोली, तुम वही हो ना, वही मोबाइल फोन वाले? लम्हों में उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया था। एक वक्त उसने बाहर नौकरी में गुजारा था। इतना तजर्बा हो चुका था कि अगले शख्स से मुकाबला कर सके। मर्द के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। होने वाले शौहर से तमीज से बात करते हैं। ये तुम क्या होता है? आप कहकर मुखातिब करो मुझे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बीवी मुझे तुम कहकर बुलाए। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शौहर तो बहुत दूर की बात, तुम जैसे शख्स को मैं मुंह तक लगाना पसंद ना करूं। छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी थी, मगर उसने काफी सख्ती से इसे थाम रखा था। अगले ही लम्हे उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उसके माथे पर रख दी। तोड़ दो। उसके लहजे में सर्द मैरी और तंज दोनों थे। वो साकित हो गई। दीवार से जा लगी। आंखों में दहशत उतर चुकी थी। सांस रुक गई थी। उसे बंदूकों से बहुत डर लगता था। वो कुछ देर उसे यूं ही सहमी हुई नजरों से देखता रहा, फिर कदम पीछे हटाते हुए बोला,
आधे घंटे में वापस आ रहा हूं, खुद को तैयार रखना। मेरा नाम वजदान खानजादा है, आज ही तुम्हें अपना बनाऊंगा। बहुत दे दी तुम्हें छूट। वो जवाब देती उससे पहले ही वो रुके बगैर उसके सामने से गुजरकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पीछे वो दीवार के साथ रोते रोते जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी हिम्मत, आवाज और खुददारी सब छीन ली गई हो। आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। कमरे का सकूत अब उसके खौफ के शोर से भर गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ठीक 1 घंटा गुजर चुका था। कमरे के दरवाजे पर धीरे से आहट हुई और अगले ही लम्हे दरवाजा चुरचुराते हुए खुला। अंदर कदम रखते हुए वजदान के साथ 2 अजनबी अफराद दाखिल हुए, जिनमें एक दरमियानी उम्र के मौलवी साहब थे और दूसरा एक गवाह, जिसके चेहरे पर बेजारी और बेचैनी साफ लिखी जा चुकी थी। उसके पीछे ही कुछ और मर्द भी दाखिल हुए थे। यकीनन वो गवाह के तौर पर आए थे। कमरे की मध्यम रोशनी में अनुषा जमीन पर सिमटी हुई बैठी थी, आंखें सुर्ख, मुसलसल गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने खौफ से सामने खड़े मर्दों को देखा। न जाने क्यों उसे समझ आ गया था अब कुछ नहीं हो सकता। वो एक ऐसे हाथों में आ चुकी है जहां से निकलना बिल्कुल आसान नहीं। जिस जगह वो थी, इतना तो उसे अंदाजा हो गया था, ये बहुत ही रईस आदमी है, जिसके पास धन, दौलत और पावर दोनों चीजें मौजूद हैं, और ऐसे इंसान से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल तरीन अमल है। वजदान ने कदम बढ़ाते हुए जेब से बंदूक निकाली। उसकी आंखों में सर्द मेहरी और इरादे की सख्ती झलक रही थी। बंदूक अनुषा की तरफ तानते हुए धीमी मगर धमकी आमेज लहजे में बोला, उठो, इधर आओ, निकाह करना है हमें। किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहता मैं, आओ इधर। अनुषा ने सर झटक कर ऊपर देखा। खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? मेरे बाबा, अम्मी, मेरी आयशा सब परेशान होंगे। मुझे जाने दो, मुझे घर छोड़ाओ। देखो कितनी रात हो गई है। मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हो? मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। मेरे बाबा मर जाएंगे, ऐसा मत करो। उसकी आवाज भर आ गई थी। वो हाथ जोड़ने लगी। मुझे निकाह नहीं करना। निकाह उससे किया जाता है जिसे जानते हो, जिसे रिश्ता हो, इज्जत हो। ना मैं तुम्हें जानती हूं, ना मैंने तुम्हें कभी देखा है। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी। वजदान ने एक लम्हे उसे देखा। उसकी बात जैसे सुनी ही ना हो। फिर सर्द लहजे में बोला, जान भी लेंगे, जान पहचान की फिक्र ना करो। अच्छी तरह बताऊंगी कि मैं कौन हूं, लेकिन बीवी बनाने के बाद। मेरे पास फालतू की बातों का वक्त नहीं है। उठो और आओ, निकाह अभी के अभी होगा। अगर मेरा दिमाग खराब किया तो तुम्हें मार दूंगा। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप आ जाओ। उसने आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से पकड़ा और जबरदस्ती से उसे बिठा दिया। वो बुरी तरह घबरा रही थी। मर्दों के दरमियान उसे अपना आप बहुत कमतर महसूस हो रहा था। उसके बैठते ही मौलवी साहब ने कुछ लम्हे अनुषा को बगौर देखा, जैसे जमीर से उलझ रहे हों। फिर रस्मी अंदाज में बोले, अनुषा बिनते रहमान मलिक, आपका निकाह वजदान खानजादा वल्द एहसान खानजादा से तय किया जा रहा है। कि आपको यह निकाह कबूल है? अनुषा ने रोते हुए सर नफी में हिलाया। नहीं, मुझे कबूल नहीं। मैं इन्हें नहीं जानती। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। मैं नहीं करना चाहती इनसे निकाह। मौलवी साहब इन्हें बताएं, आप जबरदस्ती शादियां नहीं होती। न जाने ये शख्स कौन है जो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। मगर जैसे ही वजदान ने बंदूक की नाली उसके सर के करीब की, वो एक झटके से बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जबकि वो उसको देखते हुए बोला, बोलो, कबूल है या नहीं? उसने आंसू भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और सर झुकाकर बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? वो सिसकियां लेती हुई बोली, कबूल है। तीसरी बार रस्मी अंदाज में पूछा गया तो उसकी आवाज कांपते होठों से निकली, कबूल है। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ उसकी हिचकियां गूंज रही थी। वजदान ने कंधे सीधे किए और बगैर किसी झिझक के बोला, कबूल है। मौलवी साहब ने सर हिलाया, दस्तावेजात पर दस्तखत मुकम्मल करवाए और रस्मी दुआ के बाद उठ खड़े हुए। वजदान की आंखों में इत्मीनान था,
जैसे कोई मकसद हासिल हो चुका हो, मगर अनुषा की आंखों में सिर्फ शिकस्त और वो सवाल था जो उसके लबों तक आकर दम तोड़ जाता था। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? निकाह के बाद वो कुछ देर कमरे में उसे रोते हुए देखता रहा था। कोई बात नहीं की थी। एक लम्हे के लिए अनुषा का दिल किया वो पूछे इस वक्त वो कहाँ पर है और कब तक उसे यहाँ रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही थी। तकलीफ इतनी थी कि लबों से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। चंद लम्हों बाद वो कमरे से उठकर चला गया, रात भर उसे तकलीफ में तड़पता छोड़कर। सुबह की किरणें शीशे की खिड़कियों से अंदर झांकने लगी थी। वो बेड पर खामोशी से बैठी थी। गिरदो नवा में फैली अजनबियत उसके दिल पर बोझ डाल रही थी। निकाह कल रात हुआ था। कमरे में सन्नाटा उसे अब घुसडन में बदलता महसूस हो रहा था। उसे भूख भी सता रही थी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ पर है। वो बस उस कमरे से निकल जाना चाहती थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। दबे कदमों दुपट्टा दुरुस्त करते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये कोई आम घर नहीं बल्कि एक बहुत आलीशान हवेली थी। मरमरी फर्श, लकड़ी की कुशादा सीढ़ियां, बुलंद बाला छतें और हर दीवार पर महंगे फन पारे। नीचे उतरते वो एक लम्हे को रुक गई। गार्डन एरिया की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छू लिया। फूलों की महक और दरख्तों के दरमियान खामोशी, जिसे सब कुछ पुरअमन हो। मगर अगले ही लम्हे एक गोली की आवाज के साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। गार्डन के कोने में वजदान खानजादा ने किसी शख्स के सीने में गोली उतार दी थी। वो आदमी जमीन पर गिरा और हिलने तक की सकत ना रही थी। बहुत ही अजियतनाक मौत दी गई थी। लम्हा भर के लिए वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बाहर आकर वो अपनी आंखों से इतना खतरनाक मंजर देखेगी। वो अपनी जगह पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। आंखें खौफ से फैली हुई थी, होंठ कपकपा रहे थे। वजदान ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसका चेहरा लम्हे भर को संजीदा हुआ। गिरदो नवा में मौजूद गार्ड्स भी मुतवज्जो हो गए, मगर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी तरफ बढ़ने लगा। तमाम गार्ड्स ने अपनी नजरें झुका ली थी, क्योंकि मालूम था ये लड़की उनके साहब की बीवी है, जिस पर वो नजरें तक बर्दाश्त नहीं करते। उसकी मोहब्बत से कौन कौन वाकिफ नहीं था। वो भागने का इरादा करती, मगर उसी लम्हे उकबी दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो गया। वो बिल्कुल करीब आ गया था, जबकि वो गैर इरादी तौर पर कदम पीछे लेती जा रही थी। अभी वो भागती, उससे पहले ही उसने उसे सख्ती से थाम लिया। बाजू गर्दन में डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया था। वो तड़प कर बोली, छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। खुदा की कसम मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपने जो किया मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। मुझे डर लग रहा है। खुदा के लिए, बीवी होने के वास्ते मुझे बख्श दो। वो रोते कपकपाते लहजे में चिल्लाई, मगर वजदान की गिरफ्त उसकी बाजुओं पर मजबूत होती गई। उसकी आंखों में अब कोई रहम नहीं था, सिर्फ एक ठहरी हुई बेरहमी। खौफ के मारे उसकी जान निकल रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कमरे से बाहर आकर वो ये मंजर देखेगी। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता, वो अपने कमरे से कदम भी बाहर ना निकालती। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या देख लिया है। इस अंजाम की सजा मेरे कुत्ते देंगे तुम्हें। इतनी आसानी से मैं आई विक्टिम को बख्शता नहीं हूं। भला तुम्हें कैसे छोड़ दूं? भले तुम मेरी बीवी हो, कल को अगर तुम इस घर से निकल गई और तुमने बाहर जाकर मेरी असलियत किसी को बता दी तो मेरा क्या होगा? वो मसनूई गुस्से से बोलता हुआ अपने इशारे पर दो शिकारी कुत्तों की जंजीरें खुलवाता है। वो जानबूझकर उसे डरा रहा था। कल रात उसका रोना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसकी आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू इसकी जान पर अजाब की मानिंद बन गया था। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खुदा के लिए मैं सच कह रही हूं, मैं अपनी जबान बंद रखूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं। ऐसा मत करो, मुझे कुत्तों से डर लगता है। वो खौफ से चीखी, आंखों में आंसू तैरने लगे। शिकारी कुत्ते भौंकते हुए उसकी तरफ लपके, दिल दहला देने वाली आवाज के साथ जैसे वक्त रुक गया हो। उसने आंखें बंद कर लीं और खौफ से चीखते हुए बेहोश हो गई। उसके लिए यह मंजर बहुत ही खौफनाक था। शिकारी कुत्तों का करीब आना, वो अपने होशो हवास गंवा बैठी। वजदान ने उसके झुकते वजूद को बाहों में थाम लिया। बस इतनी हिम्मत थी?
मुझे लगा था जिस तरह कल मेरा मुंह तोड़ने की बात कर रही थी, इन कुत्तों का भी मुंह तोड़ दोगी, मगर तुम तो बहुत बुज़दिल निकली, बिल्कुल कमज़ोर चिड़िया की मानिंद। तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। वजदान खानजादा की बीवी हो और इतनी कमज़ोर। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी बीवी शिकारी कुत्तों को देखकर बेहोश हो गई थी, मेरा कितना मजाक बनेगा। वो होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए कहता हुआ उसे बाजुओं में उठाकर वापस अंदर ले गया। पीछे जमीन पर पड़ी लाश, गार्डन में उड़ता हुआ खून का छींटा और 2 कुत्ते जो अब खामोश खड़े थे, सब कुछ गोया एक खामोश वार्निंग था इस दुनिया में कदम रखने वाली नई लड़की के लिए, जिसकी रिहाई अब किसी भी कीमत पर यहां से मुमकिन नहीं थी। सर्द शाम की गहरी धुंध खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी में उसने जैसे ही आंखें खोली, लम्हा भर के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। जहन जैसे बंद हो गया हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता होश की दीवारें जागने लगी। नजरें दौड़ाई तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी जो परेशान सी लग रही थी। यकदम उसे देखते ही खौफजदा हो गई। वो जब से यहाँ आई थी उसे डर ही लग रहा था। एक एक चीज उसे अनजाने खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि मुलाजमा उसकी तरफ देखते नरमी से बोली, बेगम साहिबा, मैं आपके लिए जागने का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। साहब नीचे खाना खा रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, प्लीज़ जल्दी चलें। उन्होंने मुझे बहुत पहले भेजा था, अब तो वो आधा खाना भी खा चुके होंगे। उसने फौरन जवाब दिया, मुझे नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे मार देंगे। तुम मेरी मदद कर दो प्लीज़, मुझे यहाँ से निकाल दो। मेरे बाबा अम्मी, अपनी बहन के पास जाना है। ये इंसान अच्छा नहीं है, ये कातिल है। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है। मगर मुलाजमा कदरे सख्ती से बोली, आपको जाना पड़ेगा। उनका कहना है आज वो आपको अपनी हकीकत बताएंगे। हो सकता है हकीकत के बाद वो आपके सामने ये ऑप्शन भी रखें कि आप उनके साथ रहें या फिर चली जाएं। आपकी मर्जी है। ये सुनकर वो एक झटके से खड़ी हुई, बदन में जैसे एक सर्द लहर दौड़ गई हो। तुम सच बताओ, वाकई वो मुझे छोड़ देंगे? मेरे ये सामने ये ऑप्शन रखेंगे? मुलाजमा ने एक नज़र उस पर डाली और धीमी आवाज में बोली, हो सकता है ऑप्शन रख दें, लेकिन अभी फिलहाल आपका नीचे जाना बेहद ज़रूरी है। उसने एक नज़र मुलाजमा पर डाली और फिर सर हिलाकर उसके पीछे बढ़ी थी। कदम खुद ब खुद मुलाजमा के पीछे पीछे चल पड़े। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे हर जीना एक नया सवाल लेकर नीचे ले जा रहा हो। जब वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो सामने ही बड़ी सी सरबराही कुर्सी पर वो बैठा था। काली कमीज के साथ गहरा नीला वेस्ट कोट पहने खामोशी से खाने में मशगूल था। उसने नजर उठाए बगैर हाथ के हल्के इशारे से उसे अंदर आने का बोला। वो सहमे कदमों से आगे बढ़ी। चेहरे पर खौफ और दिल में बेशुमार सवालात थे। उसके पास जाकर रुकी तो उसने पहली बार नजरें उठाई और नरमी से बोला, आओ बैठो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। लड़ने के लिए जिस्म में ताकत की बेहद ज़रूरत होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम कमज़ोर होकर लड़ो और फिर दोपहर की तरह बेहोश होकर मेरी बाहों में आ जाओ। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मैं जानबूझकर आपकी बाहों में आई थी, वो बस मुझे चक्कर आ गए थे। मुलाजमा ने बताया है आज आप मुझे अपनी हकीकत बताएंगे। मुझे मेरी हकीकत बताएं। आप कौन हैं? और प्लीज़ सच सच बताना, मेरा दम घुट रहा है। वो मुस्कुराया जैसे ये जुमला उसके लिए कोई पुरानी याद हो। फिर रिसान से बोला, पहले बैठो, खाना खाओ, फिर सब बताता हूँ। जब तक तुम खाना शुरू नहीं करोगी मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। सच्चाई से ज़्यादा मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र है। चंद लम्हे वो बस उसे देखती रही, फिर खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। सन्नाटा दोनों के दरमियान छाया रहा। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वो चंद लुक़मे खाने के बाद बोला, मेरा नाम वजदान खानजादा है। तुम्हें 4 साल पहले पहली बार देखा था एक छोटे से कपड़ों के स्टोर पर। तुम नीला जोड़ा देख रही थी और मैं तुम्हें। वहाँ मैं एक काम से गया था। कुछ महीनों से मुझे मालूम हो रहा था कि कुछ लोग कपड़ों की आड़ में ड्रग्स बेच रहे हैं और कुछ शॉपिंग करने वाली लड़कियों को स्मगल कर रहे हैं। वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, फिर क्या हुआ? वजदान निगाह नीची करते बोला, फिर मैं तुम्हें भूल नहीं सका।
वक्त गुजरता रहा मगर मैंने तुम पर नजर रखना शुरू कर दी। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मसरूफियात, सब कुछ। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी पुप्पो का बेटा फारूक तुम्हें पसंद करता है। वो लम्हा मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा दिमाग घूम गया था। उसका चेहरा हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से भर गया। वो सिर्फ खामोशी से उसे तकिए जा रही थी, जैसे अब कोई और जुमला सुनने की हिम्मत ना बची हो। कमरे की रोशनी अब भी मध्यम थी, लेकिन फजा में एक सच्चाई की तपिश शामिल हो चुकी थी, वो जो हर चीज को बदलने वाली थी। वो नरम लहजे में बोला, मैं जानता हूं अब जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने लगा हूं तुम्हारा दिल टूट जाएगा, लेकिन अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखो। और मैं कहता हूं ये सच्चाई तुम्हें इस बात का भी एहसास दिलाएगी कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने तुम्हारे घर वालों की मर्जी से तुम्हें अपनाया है। तुम्हारे बाप को मैंने अपने दफ्तर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, और वो मान गए थे। उन्हें कोई एतराज नहीं था। मगर मुझे अच्छी तरह मालूम था कि जब तुम्हें मेरे बारे में इल्म होगा तो तुम बहुत एतराज जताओगी, इस रिश्ते से इनकार भी कर सकती हो। और अगर मैं मंजर आम पर तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। मैं फौरी तौर पर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता था। मेरे अपने कुछ मामलात थे जो सुलझाने थे, जिनको सुलझाए बगैर अगर मैं तुम्हें अपना लेता या फिर खुद को तुम्हारे साथ खुफिया तौर पर भी जोड़ता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैंने इस बात को छुपा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था मेरा छुपाना तुम्हारी जिंदगी में किसी और को शामिल कर देगा। उसने थोड़ा रुककर गहरा सांस लिया, जैसे अगले अल्फाज उसके लिए आसान ना हो। जिस शख्स को तुमने सुबह मरा हुआ देखा वो 2 12 साला बच्चियों का रेपिस्ट था। मैं इस मुल्क का मुहाफिज हूँ, कानून के नीचे काम करता हूँ, लेकिन कई बार कानून वक्त लेता है और मेरे पास वो वक्त नहीं होता। मैं माफिया हूँ, लेकिन उनके खिलाफ जो इंसानियत की जड़ काटते हैं। मैं इंसाफ को अपनी रफ्तार से पूरा करता हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, बल्कि बुराई को ख़त्म करता हूँ। वो खामोशी से सुनती रही। दिल की धड़कनें जैसे ठहर गई थी। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम यहाँ हो। तुम्हारी माँ और बहन को भी इस निकाह का इल्म है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो साथ रहो, ना रहो तो भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वो गुस्से से तप कर बोली, तो आप मेरे साथ मोहब्बत के दावे करते हैं और बात करने का सलीका तक नहीं। अगर वाकई आप मेरे काबिल होते तो मैं शायद मान भी जाती। इतनी जबरदस्ती की जरूरत क्या थी? वो संभल कर बोला, हाँ मेरा अंदाज गलत था, लेकिन नीयत नहीं। तुम शायद मानती नहीं, इसलिए मैंने वो रास्ता चुना जो तुम्हें मेरे करीब रख सके। और मुझे लगता है निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जबरदस्ती मैंने की, जिसका मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूं। एक खामोशी दोनों के दरमियान दरार की तरह फैल गई, मगर उस दरार के पार एक सच था, जज्बा, एहसास और वो शिद्दत जो जबरदस्ती नहीं बल्कि टूटकर चाहने वालों में होती है। वो धीरे से उसके करीब आया, उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं तुम दिल से मेरे पास रहो। अगर एक मौका दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत सिर्फ नाम की नहीं, किरदार की भी है। उसकी आवाज में पहली बार गरूर नहीं, सिर्फ एक इल्तिजा थी। वो जो हमेशा मजबूत रहा अब कमजोर दिखाई दे रही थी। उसकी मोहब्बत में वो उसके चेहरे को देखती रही। दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी, गुस्सा, दर्द, बेबसी और अब शायद थोड़ी सी कबूलियत। वो पलके झुकाकर आहिस्ता से बोली, मैं एक मौका दूंगी, लेकिन सिर्फ एक। खुद को साबित करना तुम्हारे जिम्मे है। वो मुस्कुराया, ना फातेह की तरह ना ही मुजरिम की तरह, बल्कि एक इंसान की तरह जो आखिरकार सच बोलने के बाद हल्का हो गया हो। तुम देखोगी, तुम्हारा फैसला कभी गलत नहीं होगा। बाहर बारिश ने हल्की सी दस्तक दी, जैसे फिजा ने भी उस रिश्ते की गवाही दे दी हो। और फिर वही हुआ था जो उसने कहा था। उसने वाकई उसका बहुत ख्याल रखा था। धूमधाम से वलीमे की रस्म निभाई थी, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा बिल्कुल भी
मंजर आम पर नहीं आने दिया था, क्योंकि उसे मालूम था वो तो अपने मुजरिमों का और अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसकी मासूम बीवी नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।